दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको दो वीडियो दिखा देना चाहता हूं। एक वीडियो में है शिरोमणि अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर और दूसरे में है आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रवक्ता नील गर्ग। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को लेकर एक के बाद एक दोनों के ये बयान आए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करते हुए चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार का पद खत्म कर दिया है। उसकी जगह अब चीफ सेक्रेटरी का पद होगा। यही नहीं, केंद्र ने अब चंडीगढ़ में आईएएस अफसरों के 2 पद और बढ़ाते हुए आईएएस अफसरों की संख्या 11 कर दी है। इस पर पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। अकाली दल और आम आदमी पार्टी तो बिफर ही पड़ी हैं। वो चंडीगढ़ में इस नए और अहम बदलाव को चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को कमजोर करने और पंजाब के हक पर डाका बता रही हैं। पहले इन दोनों के बयान सुनिए, फिर इस पूरे मसले पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चुप चुपीते केंद्र ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਯੂਟੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਯੂਟੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ? ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ? ਔਰ ਅਗਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਈ? ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਦੇ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਟਕੋ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੋਹੇ ਹੱਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲਟਾਈ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲਟਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਹਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਮਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਉੱਥੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ
क्योंकि मैं पंजाब के लोगों को दसना चाहना आ कि किस तरीके नाल केंद्र की सरकार साडे नाल धक्का कर रही है। ये कोई पहली बारी धक्का नहीं होया। सो मेरे कहने का मतलब हैगा केंद्र दीयां समय समय के हुक्मरानां ने लगातार पंजाब के हक्कां दे उत्ते डाका मारिया। खास करके जिहड़ा ये हुक्मरान हैगा तानाशाह भी है, जिहड़ा कि किसी नाल सलाह मशवरा भी नहीं करता और सीधा जानी कि अटैक करदा आ। इस अटैक नूं पंजाब के लोग जिहड़े आ वो कदे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना असीं इस चीज़ नूं बर्दाश्त करांगे। तो इन दोनों के बयान सुनकर आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि मसला कितना गंभीर है और अगले दिनों में ये मुद्दा कितना बड़ा हो सकता है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी ट्विटर के जरिए इस मसले पर अपना कड़ा विरोध दर्ज करा दिया है। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी का पदनाम बदल जाना इतना बड़ा मुद्दा क्यों है कि अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को चंडीगढ़ पर पंजाब के हक के लिए तुरंत आवाज़ उठानी पड़ गई। इस पर बात करने से पहले आपको ये बता दूं कि चंडीगढ़ पर बराबर हक जताने वाले हरियाणा की सरकार अभी इस मामले में चुप है, क्योंकि हरियाणा में भाजपा की ही सरकार है और हरियाणा की चुप्पी उन अटकलों को हवा दे रही है जिनमें कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिमाग में चंडीगढ़ को लेकर जरूर कुछ बड़ा चल रहा है। ये क्या हो सकता है, इसे बूझने से पहले आपको ये भी बता दूं कि चंडीगढ़ बनने के बाद यहाँ सर्वोच्च प्रशासनिक पद चीफ कमिश्नर का होता था, लेकिन 3 जून 1984 को केंद्र सरकार ने चीफ कमिश्नर का पद समाप्त करते हुए पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ का प्रशासक भी बना दिया था और चीफ कमिश्नर को प्रशासक का सलाहकार नियुक्त कर दिया। अब 40 साल बाद केंद्र सरकार ने सलाहकार का पद खत्म करके इसे मुख्य सचिव के रूप में रिप्लेस कर दिया है। विशेषज्ञों की माने तो इस बदलाव से चंडीगढ़ की प्रशासनिक संरचना को और अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा। हालांकि चंडीगढ़ में जो भी आईएएस अधिकारी प्रशासक के सलाहकार पद पर आता है वो मुख्य सचिव के स्तर का ही होता है, लेकिन यहां आने के बाद उन्हें सलाहकार कहा जाता है। इसलिए पिछले काफ़ी समय से चंडीगढ़ में मुख्य सचिव के पद की मांग की जा रही थी। अब चंडीगढ़ में प्रशासक के सलाहकार का पद पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों के बराबर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ में चीफ सेक्रेटरी का पद क्या सिर्फ इतने से कारण के लिए बनाया गया है? इस सवाल ने पंजाब की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि 2022 में मोदी सरकार चंडीगढ़ में पंजाब सर्विस रूल्स की जगह केंद्र के सर्विस रूल्स भी लागू कर चुकी है। तब भी पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया था। उस समय पंजाब सरकार ने बाकायदा विधानसभा में चंडीगढ़ पंजाब को हस्तांतरित करने के संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया था, जिससे हरियाणा की तत्कालीन भाजपा सरकार भड़क गई थी। हालांकि हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में केंद्र के सर्विस रूल्स लागू करने का समर्थन किया था। चंडीगढ़ पर अधिकार की लड़ाई में उस समय हिमाचल भी कूद पड़ा था। यही स्थिति अब चंडीगढ़ में चीफ सेक्रेटरी का पद सृजित किए जाने के बाद भी बनती दिख रही है, क्योंकि इस बार चीफ सेक्रेटरी का पद बनाने से आशंका जताई जा रही है कि मोदी सरकार चंडीगढ़ को टेम्परेरी यूनियन टेरिटरी के बजाय परमानेंट यूनियन टेरिटरी बनाकर यहाँ विधानमंडल यानी विधानसभा के गठन की तरफ बढ़ रही है, जिससे अभी पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ पर 60 और 40 के अनुपात में जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले कुछ समय से चंडीगढ़ में दिलचस्पी भी ज़्यादा दिखा रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि भाजपा लाख कोशिशों के बावजूद पंजाब में अपनी पैठ नहीं बना पा रही है। लोकसभा चुनाव में 1998 से कभी 1, कभी 2 और कभी 3 सीट तक जीतती रही भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल से अलग होकर पहली बार चुनाव लड़ी तो एक भी सीट नहीं जीत पाई। ये बात अलग है कि भाजपा का वोट शेयर अकाली दल से ज़्यादा रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को सिर्फ 2 सीटें मिली थीं। पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के भाजपा में शामिल होने और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके सुनील जाखड़ को प्रदेश में भाजपा की कमान सौंपने का भी भाजपा को कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ।
ऐसे में यदि चंडीगढ़ को पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर की तरह विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है तो भाजपा को पंजाब में इसका फायदा हो सकता है। चंडीगढ़ में भाजपा का ठीक ठाक जनाधार भी है और 2014 से इसमें इजाफा भी हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां भाजपा सांसद किरण खेर की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भाजपा उम्मीदवार को मात्र 2500 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। चंडीगढ़ नगर निगम में भी भाजपा इस समय सबसे ज्यादा पार्षदों वाली पार्टी है। चंडीगढ़ में विधानमंडल बनने पर यदि भाजपा सत्ता में आई तो देश में भाजपा शासित यह पहला ऐसा राज्य होगा जहां की सरकार में पंजाबियों की भागीदारी ज़्यादा संख्या में होगी। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में पंजाबियों की जनसंख्या भी खासी है। वैसे सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी है, लेकिन यहाँ हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा पंजाबी है। चंडीगढ़ के सियासी माहौल का असर भी पंजाब की राजनीति पर देखा जाता रहा है। 2021 में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव लड़कर सबसे ज़्यादा सीटें जीती, तो अगले साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया था। इसके अलावा मोदी सरकार ने अपने हर कार्यकाल में देश के भीतर पुराने बड़े सियासी विवादों को निपटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक नया इतिहास लिखने का तो जैसे बीड़ा ही उठा रखा है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस किस कदर उनके निशाने पर रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ के संदर्भ में इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर दो पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद दशकों से चला आ रहा है और चंडीगढ़ को कांग्रेस के शासन में पंडित नेहरू ने ही बनाया और बसाया था। अगर मोदी सरकार चंडीगढ़ के विवाद को भी हल कर देती है तो ये उसकी बड़ी उपलब्धियों का हिस्सा भी बन जाएगा। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, इसलिए अमित शाह एक एक कदम बढ़ाकर हर एक पर पंजाब की प्रतिक्रिया का आकलन भी कर रहे हैं। लेकिन पंजाब ये भी जानता है कि अमित शाह के लिए चंडीगढ़ का मसला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे की चुनौती से बड़ा नहीं है। इसलिए चंडीगढ़ में चीफ सेक्रेटरी का पद बनाए जाने पर पंजाब की चिंता इस बार ज़्यादा बढ़ गई है। लिहाजा ये मसला अभी तूल पकड़ने के आसार भी दिख रहे हैं। केंद्र और पंजाब के अगले कदम पर सबकी निगाह लगी हुई है। हमारी नज़र भी चंडीगढ़ के हर महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर बनी रहती है। नई अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।